Good morning, students. Today we are starting with chapter 3, Fiber to Fabric. Now, in this chapter, you will learn about all these things: importance of clothes, fibers and fabrics, types of fibers, and history of clothing. We are starting with the gear up. Look at the picture. This is a jute rope. What is it made up of? Where do we get the things to make it? Can you name some other things made of the same material? So you can see here, you can see a jute rope. You are being shown over here. Now जूट हमें कहाँ से मिलता है? जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जूट एक प्लांट प्रोडक्ट है जो जूट प्लांट से मिलता है. उसके स्टेम्स को रॉट करके वी गेट द जूट प्लांट. So today we are starting with our first topic, importance of clothes. Means हमें clothes की क्या आवश्यकता होती है. Clothes are mainly used to protect us from cold, heat, rain, etc. People living in different places wear different types of clothes depending on the climate of the place. For example, people living in Gujarat generally wear cotton clothes and people living in Kashmir wear woolen clothes. मीन्स जो क्लॉथ्स हैं वो हमें कोल्ड से, हीट और रेन से प्रोटेक्ट करते हैं. ना अलग अलग प्लेसेस में जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स डालते हैं. जैसे जो बहुत कोल्ड क्लाइमेट में लोग रहते हैं दे वियर जनरली द वूलन क्लॉथ्स, और जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं दे वियर द कॉटन क्लॉथ्स. लाइक पीपल लिविंग इन गुजरात दे जनरली वियर द कॉटन क्लॉथ्स. लाइक इन द पंजाब वी आर हैविंग एक्सट्रीम heat and extreme cold also. Like in the winter season we need to wear the woolen cloth, and in the summer season we need to wear cotton cloths. The material that we use for clothing is called fabric. Now underline this thing: the material that we use for clothing is called fabric. In this chapter we will learn more about different types of fabrics, their properties and how they are made. सो फैब्रिक क्या होता है, जिसको हम जनरली क्लॉथ बोलते हैं. सो अ क्लॉथ मटेरियल दैट इज़ मेड बाय वीविंग और नीटिंग थ्रेड्स टुगेदर, दैट इज़ नोन एज फैब्रिक. ओके, यू कैन सी इन द न्यू वर्ड वी आर हैविंग इट्स डेफिनेशन. अ क्लॉथ मटेरियल मेड बाय वीविंग और नीटिंग थ्रेड्स टुगेदर. जो थ्रेड्स को डिफरेंट थ्रेड लेकर हम उसको आपस में बुनते हैं, उससे जो क्लॉथ बनता है दैट इज़ नोन एज फैब्रिक. ना जो भी हमारे ड्रेस मटेरियल होते हैं, वट एवर लाइक यू आर वियरिंग द यूनिफॉर्म, यू आर वियरिंग योर अदर ड्रेसेस, दैट इज़ मेड फ्रॉम द फैब्रिक. नाउ इट कैन बी अ वूलन फैब्रिक और इट कैन बी अ कॉटन फैब्रिक. Fibers and fabrics. Now there is difference between fiber and fabric. Fiber is the thread and fabric is the cloth. जो fiber से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, fabric. Cotton, wool, silk and nylon are some common fabrics. Now these are the examples, underline this. Cotton, wool, silk and nylon, these are some common fabrics that we generally wear. But what are these fabrics made up of? Let us find out by doing an activity. Now we are reading the activity 1. Aim to identify different types of fabrics. Materials required: cutting of fabrics from a tailor shop. Procedure: bring the cuttings of different types of fabrics to the class and try to identify the fabric as silk, cotton, nylon, polyester, etc. Take help of your teacher and fill in the table given below. इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, वी आर ब्रिंगिंग डिफरेंट मटेरियल्स लाइक सिल्क, कॉटन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर. इसके छोटे छोटे सैंपल लेकर आने हैं. फिर सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, उसमें टेक्सचर. टेक्सचर मतलब जब हम उसको टच करेंगे तो वो हमें स्मूथ लगेगा या रफ लगेगा. ओके, व्हेन वी टच इट. लाइक सिल्क, सिल्क क्या होता है, इट इज़ स्मूथ. कॉटन, कॉटन इज जनरली स्मूथ. ओके, नायलॉन, नायलॉन समटाइम इट बिकम्स वेरी रफ. जैसे नायलॉन की रॉप्स बनी होती हैं, दैट इज़ रफ टू टच. पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज ऑल्सो स्मूथ. अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन शाइनी और डल. वो चमकीला है, उसमें शाइन है, या फिर वो डल टेक्स, उसका जो अपीयरेंस है दैट इज़ डल. ओके, सो सिल्क, सिल्क इज़ शाइनी, कॉटन इज़ डल, नायलॉन इज़ शाइनी एंड पॉलिस्टर इज़ ऑल्सो शाइनी. थर्ड वन, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. नाउ हम उसका
इसको हम कैसे करेंगे, हम उसमें वी विल पुट लाइक सॉक इट इन वाटर एंड देन वी विल सी दैट उसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कितनी है. ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि जो सिल्क है दैट इज़ हैविंग ओके दैट वी डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. फाइन, जैसे वी विल पुट तो वी विल फाइंड आउट जैसे नायलॉन की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत कम है, पॉलिस्टर की भी कम है, बट सिल्क और कॉटन दे आर हैविंग गुड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. Let us perform an activity to understand the material used in making fabrics. Now this is the activity 2 to understand what the fabrics are made up of. Fabric किससे बने होते हैं हम इस एक्टिविटी से पता लगाएंगे. Material required: waste cutting of cotton fabric. Procedure: take a waste cutting of cotton cloth, try to pull out a loose thread, place the yarn on a table, press its one end with one of your fingers and scratch with your nail along its length. Note down your observation. Loose threads yarns can be pulled out of fabrics. The yarn splits into several thin strands. A fabric is made up of loose threads called yarns and yarns are made up of very thin strands called fibers. So इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, वी आर टेकिंग अ कॉटन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ से हमें कोई भी लूज थ्रेड वहाँ से निकाल लेंगे. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हम उसमें थ्रेड निकाला है उसको भी हम फिंगर से स्क्रैच करके यू विल फाइंड सम मोर स्ट्रैंड्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट. फाइन, सो जो सबसे पहले हमने जो क्लॉथ से थ्रेड निकाला है दैट इज़ जो नोन एज यार्न, YARN. और जब हम यार्न को भी फिंगर से और स्क्रैच करके निकालेंगे, जो थिन स्ट्रैंड्स उसके बाहर निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं, फाइबर्स. सो सबसे पहले क्या है हमारे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फाइबर्स. सम फाइबर्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न एंड यार्न को हम वीव करके वी आर चेंजिंग इट इनटू फैब्रिक. नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. डिफरेंट कौन कौन से टाइप के फाइबर होते हैं. फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर नेचुरल फाइबर्स and man-made fibers. First we are reading about the natural fibers. Natural fibers are obtained from plants and animals. Underline this. Now these are its example: jute, wool, silk, cotton and jute, wool, silk, cotton are its natural fibers. Jute comes from jute plant, wool from sheep, silk from silkworm, cotton from cotton plant and linen from flax plant. So this we know jute हमें कहाँ से मिलता है, jute plant से, wool हमें sheep से. Now you can see the pictures over here. Now this is the jute we get from jute plant. wool कहाँ से मिलती है हमें, जनरली sheep से, camel से, some other animals, rabbits and all, जिससे हमें wool मिलती है. Silk you get from silkworm, cotton from cotton plant and linen we get from the flax plant. Few decades earlier, humans mainly used natural fibers to make their clothes, sails of ships, etc. Today the use of man-made fibers has increased considerably. Natural fibers are mainly obtained from the following sources: plants from their stem, bark, leaf, seed, etc. and animals, hair और insect cocoon. Okay? जैसे कुछ सालों पहले जो ह्यूमंस थे वो नेचुरल फाइबर ही यूज़ करते थे, लेकिन आजकल मैन मेड फाइबर्स जो इंडस्ट्रीज़ में मिलते हैं, फाइबर्स बनते हैं, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जिनमें आपके रेयन आता है, पॉलिस्टर इज़ देयर, नायलॉन इज़ देयर. सो वी आर यूजिंग दीज ऑल्सो. जो नेचुरल फाइबर्स हैं दे ईदर कम फ्रॉम द प्लांट्स और दे ईदर कम फ्रॉम द एनिमल्स. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हमें फाइबर मिलते हैं लाइक स्टेम, बार्क, लीफ, सीड एट्सेट्रा. एनिमल के हेयर से और इंसेक्ट के कोकून से. इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज. जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं और ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं. डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर नायलॉन, रेयन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर.
Man-made fibers have the following features. They are very strong, they are easy to clean, and they dry quickly. They need little ironing as they do not wrinkle easily, they do not absorb sweat, they catch fire easily. So these are its advantages, which that is why we are using them in many purposes. इनमें आयरन की जरूरत कम पड़ती है, प्रेस नहीं करना पड़ता क्योंकि ये रिंकल नहीं होते. जनरली ये जो स्वेट है उसको नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, फायर ये जल्दी कैच कर लेते हैं. Now these questions you have to do. What is the importance of clothing? What do you understand by fabrics? Define fiber. What are the different types of fibers? These you will do in the rough notebook. Now let us discuss few important plants and animal fibers. First one is cotton. Cotton is used to make different types of textile products such as t-shirts, towels, sarees, shorts, suits, jeans, socks, bed sheets, pillow covers, etc. Cotton fabrics are soft and durable. Now that is important. Okay, किस टाइप के कॉटन फैब्रिक्स होते हैं? These are soft to touch and durable. Durable मतलब these are long lasting. इतनी जल्दी ये फटते नहीं हैं. They are cool to wear. Okay, these are its properties. Cotton fabrics are also good absorbents of water. Therefore, they dry slowly. They also crease easily. Fine. So, these are its properties. First one, they are soft and durable. Cool to wear. That is why we are wearing them in the summer season. These are good absorbents of water. वाटर को अच्छे से वो एब्जॉर्ब करते हैं और जिसके कारण वो जो जब हम उन्हें सुखाने को डालते हैं वो धीरे सूखते हैं. दे ऑल्सो क्रीज ईजिली. ईजिली उनकी क्रीज बन जाती है, प्रेस हो जाती है. Where cotton is grown. Okay, before that we will see some examples are given over here. T-shirt, towel, sari and bed sheets. These are its common uses. Where cotton is grown in India. India में cotton कहाँ grow होती है? In India, इसको underline करना है आपने. Cotton is grown in महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा and Punjab. So these are the states where the cotton is mainly grown. The cultivation of cotton plant requires high temperature, underline this, plenty of bright sunlight, long frost-free days and light rainfall. Black soil found in western India and southern India and alluvial soil found in northern India are suitable for growing cotton. So, कॉटन के कल्टीवेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? सबसे पहले हाई टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ ब्राइट सनलाइट. ऐसे एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा टाइम सन आती है, सन की लाइट आती है, कॉटन ज़्यादा ग्रो होती है. लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ कॉटन ग्रो नहीं होती. एंड लाइट रेनफॉल. ब्लैक सॉइल, जो बेस्ट सॉइल हैं कॉटन ग्रो में, दैट आर द ब्लैक सॉइल एंड द एल्यूवियल सॉइल. Black soil is found in western India and southern India and alluvial soil is found in northern India. These are suitable for growing cotton. How cotton is obtained? कहाँ से cotton मिलती है? Cotton is obtained from cotton plants. The fruits of cotton plants are called cotton balls. The cotton balls are roughly spherical in shape and quite fluffy. यू माइट हैव सीन कॉटन बॉल्स. जनरली वो फ्लफ़ी होते हैं और उनके फाइबर्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं. फिर जहाँ से हम उसका सीड को निकाल के हम जो कॉटन है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. द कॉटन बॉल्स गेट मेच्योर्ड, दे बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स विद कॉटन फाइबर्स बिकम विजिबल. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द कॉटन प्लांट ग्रोज एंड द बॉल्स आर बीइंग टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट. The seeds with cotton fibers are picked from dried cotton balls by hand. After picking, they are taken to a ginning plant where the fibers are separated from the seeds by combing. The process of separating cotton fibers from the seed by combing is called ginning. Fine. So, this is the process जहाँ पे क्या होता है, हम कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उनको हैंड से प्लांट से तोड़ा जाता है. आफ्टर पिकिंग, उसके बाद जब हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं
तो दे आर टेकन टू अ गिनिंग प्लांट, फाइन, जहाँ पे इसके फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। एंड सीड से जब हम इसके फाइबर को सेपरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड एज गिनिंग। अंडरलाइन दिस प्रोसेस। ओके, सो कौन सा प्रोसेस है? जब हम कॉटन फाइबर्स को सीड से सेपरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। गिनिंग वॉज प्रीवियसली डन बाई हैंड, नाउ डेज गिनिंग मशीन्स कॉल्ड कॉटन जीन्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। ओके, आजकल इसमें कॉटन जीन्स को यूज़ किया जाता है। द सेपरेटेड सीड्स कैन बी यूज अगेन टू ग्रो मोर कॉटन, बट इफ द सीड्स आर बैडली डैमेज दे आर डिस्पोज्ड ऑफ। जनरली जो कॉटन सीड्स हम सेपरेट करते हैं उससे हम न्यू क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट अगर सीड्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। द फाइबर्स दस ऑब्टेन्ड आर क्लीन्ड बाय मशीन्स टू रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक लीव्स, twigs, etc. Once the cotton fibers are cleaned, they are spun into yarn. The process of making yarn from fiber is called spinning. Underline this also. नाउ जो फाइबर्स, जब हम कॉटन के फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड से, उसके बाद उन्हें क्लीन किया जाता है। जैसे उसमें स्मॉल लीव्स होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, या ट्विग्स छोटी छोटी टहनियाँ स्टिक हो जाती हैं, तो उनको निकाला जाता है। आफ्टर दैट दे आर स्पन इनटू यार्न। ओके, उसको थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अर्लियर आपने देखा होगा, यू कैन सी द पिक्चर, चरखे में हम लोग कॉटन से थ्रेड बनाते थे। एक तकली, पहले एक छोटा सा डिवाइस होता था जिससे भी हम कॉटन से थ्रेड को कन्वर्ट कर देते थे, बट नाउ वी आर हैविंग दीज मशीन्स वेयर द स्पिनिंग एंड द मेकिंग ऑफ द थ्रेड दैट occurs over there. Now these are the words since the machines used to separate cotton from seeds. Spinning, the process of transforming fiber into yarn or thread. You have to learn this, all the new words. On a small scale, spinning is done by hand-operated devices like takli and charkha that we used to do in the earlier times. On commercial scale, spinning is done by huge machines in the factories. Okay? जैसे commercial scale जो business point के view से हम इसमें क्या करते हैं, spinning को, that is being done in the factories. Okay, next. The yarn is then woven to make fabric. जो हम यार्न बनाते हैं, सबसे पहले हम कॉटन बॉल लेते हैं, बॉल से जो फाइबर कलेक्ट करते हैं उससे हम वी मेक द यार्न। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग। ओके, अंडरलाइन दिस। वीविंग क्या होता है? जिसको हम जनरली बुनना जिसको कहते हैं। वीविंग इज डन बाय स्पेशल मशीन्स दैट आर कॉल्ड लूम्स। वीविंग को लूम्स मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर किया जाता है, विच मे बी इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। The finished product, that is cloth, is then used to make useful products. Let us do a simple activity to understand how yarns are woven to make fabrics. Okay? Now yarn को क्या हो जाता है, फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। okay? इसमें फैब्रिक जैसे इसमें टू यार्न्स या टू से ज़्यादा यार्न्स को आपस में वीव करके वी कन्वर्ट इट इनटू फैब्रिक। और वीविंग जो मशीन्स के ऊपर करते हैं उनको लूम्स बोलते हैं। Now this activity 3, now what you have to do this activity पेपर से आपने ऐसे बनाना है जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया है, एंड इसको आप अपनी नोटबुक्स में पेस्ट करोगे। टू अंडरस्टैंड हाउ यार्न्स आर वोवन टू मेक फैब्रिक, यार्न्स को कैसे वोवन किया जाता है, तो इसमें एक सिंपल पेपर से बताया जाता है कि कैसे हम यार्न को वीव करते हैं। Material required 2 glazed papers of different colors, say red and blue. In this picture you can take any color paper whichever available to you. A pair of scissors. Take the glazed papers and cut a square of side 26 cm from red paper. आपने इतना स्क्वायर कट कर लेना है, and a square of side 28 cm from blue paper. Make slits of 2 cm each at equal distances in the red glazed paper as shown in the figure. Cut strips of 2 cm width from the blue glazed paper. Now insert one blue strip through the slits in the red glazed paper as shown in the figure. Repeat the same with all the strips. A woven sheet of paper is formed.
Conclusion: the fabric is made in a similar way by weaving the threads. इस पिक्चर में आपको बताया गया है इस एक्टिविटी से कि हम जो थ्रेड्स हैं उनको कैसे वीव करते हैं. सो इसमें क्या करना है, आपने रेड पेपर लेना है ऑफ एनी साइज यू कैन डू एंड उसमें कट करना है, स्लिट्स बनानी है दिस वे. ओके, आफ्टर दैट यू विल टेक अ ब्लू पेपर, उससे स्मॉल स्ट्रिप्स कट करनी है आपने, और जो आपने जो स्लिट्स काटी थी इसमें उसमें से आपने ब्लू पेपर को आगे पास करना है. सो दिस शोज दैट हाउ द weaving of threads is done. Another method of making fabric from yarn is knitting. Okay, next method we are reading about the knitting. Knitting generally इसमें क्या होता है, वीविंग में हम जनरली क्लॉथ बनाते हैं. knitting हम किस में करते हैं, वूल में, ऊन में. It is a method in which a fabric is made from a single yarn. Weaving में we are using two or more yarns, but in the knitting we are using single yarn, single thread यूज होता है. Knitting can be done both by hand or by machines. Sweaters, gloves, socks and caps are made by knitting yarns. If we pull a yarn from a sweater, the whole sweater gets unraveled. This shows that knitting is done using a single yarn. आपने देखा होगा जो स्वेटर है वो एक ही थ्रेड से बनता है, और समटाइम क्या होता है अगर हम बीच से कोई थ्रेड कट कर दें या निकाल लें तो यू विल सी पूरा का पूरा जो स्वेटर है वो उधर जाता है पूरा. हम उसको एक सिंगल थ्रेड से हम खोल सकते हैं. सो इससे क्या पता चलता है, जो नीटिंग है वो एक सिंगल थ्रेड से की जाती है. नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट जूट. जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर, अंडरलाइन दिस, obtained from the stem of the jute plant. It is used for making robes, carpets, mats, decorative articles, and strong packing materials like gunny bags, handbag, etc. Jute is one of the cheapest natural fibers. It is also known as the golden fiber. जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है. इसके टू रीजन्स हैं, एक तो इसका कलर गोल्डन होता है और सेकेंड इट इज़ वेरी यूजफुल, दैट इज़ वाई इसको एज अ गोल्ड इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है. नॉलेज डेस्क. Originally, jute was mainly used for making gunny bags and handbags, but gradually it is used in packing and making carpets. जो पहले सिर्फ गन्नी बैग्स बनाया जाता था इससे एंड हैंड बैग से, बट nowadays it is used to make lots of things, and nowadays it is also used to make the jackets, dress materials also, and there are so many uses of the jute. So it is very useful material. Now, where jute is grown in India? Jute is mainly grown in Meghalaya, Bihar, Assam, West Bengal and Odisha. So these are the states जहाँ पर jute grow किया जाता है. How jute is obtained? Now it is very important. jute को कैसे हमें मिलता है jute thread? Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. The jute plants are harvested एट द फ्लावरिंग स्टेज. हार्वेस्टेड मतलब उनकी क्रॉप को कब कट किया जाता है, जब उनकी फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब फ्लावर्स आ जाते हैं उस टाइम उनको हार्वेस्टेड मतलब क्रॉप को कट करना. द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर कट एंड केप्ट अंडर वाटर फॉर सम डेज. ग्रेजुअली द स्टेम्स स्टार्ट रोटिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर्स. Now these stems are taken out of water and fibers are separated by hand. The fibers are washed in water and dried in the sun. Warm and humid climate is best for growing jute plant. It grows best on well-drained fertile soil. High temperature favors the growth of the jute plant. So jute plant कैसे obtained होता है? जो you can see the picture over here. इसमें जूट प्लांट दिखाया गया है और उससे जूट फाइबर मिलता है. सो जूट प्लांट का जो स्टेम का पार्ट होता है, स्टेम्स को कट कर लिया जाता है जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है. आफ्टर दैट इन स्टेम्स को कट करके उनको टाई किया जाता है आपस में और उनको वाटर के नीचे जैसे पॉन्ड्स वगैरह में कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है. धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो स्टेम होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स. ओके, गलने से कारण क्या होता है, उनका जो फाइबर है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है. आफ्टर दैट उनको पानी से बाहर निकाला जाता है स्टेम्स को, और उनके जो फाइबर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है हैंड से, एंड उसके बाद
उन फाइबर्स को वॉश करके उनको सन में ड्राई के लिए रख देते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर रैटिंग की पिक्चर दी हुई है आपको. दिस इज़ द रैटिंग, हाउ द रैटिंग इज़ बीइंग डन. एंड आफ्टर दैट जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं. वार्म एंड ह्यूमिड. नाउ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ गुड फॉर जूट प्लांट? इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. वार्म होनी चाहिए, ह्यूमिड मतलब वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए. जनरली मॉइस्चर कंटेंट शुड बी मोर इन द एटमोसफियर. एंड वेल ड्रेन फर्टाइल एयर. वेल ड्रेन मतलब जहाँ पानी अच्छे से जो सॉइल सॉक के रखती है, सो उस टाइप का वहाँ सॉइल चाहिए. एंड ऑल्सो हाई टेम्परेचर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द जूट प्लांट. हाई टेम्परेचर भी उसको चाहिए होता है. नाउ दिस चेक पॉइंट 2 you will do on your own. We will discuss this afterwards. Now third type of fiber which we are reading is about the silk. Silk is a natural fiber. It is produced by certain insects to build their cocoons and webs. Silk is obtained from the cocoons of the larvae of the silkworms, which feed on the leaves of the mulberry trees. The larva of silkworm spins around itself. Silk is a strong and shiny fiber. It is used to make sarees, ties, suits, scarves, etc. Fabric made of silk fiber keeps the body warm in cold weather because it is good absorbent of heat. Rearing of silkworm for the production of silk is called sericulture. इसको आपने लर्न करना है. न्यू वर्ड में भी दिया हुआ है सेरिकल्चर. व्हाट इज दैट? द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू प्रोड्यूस सिल्क. दैट प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर. नाउ सिल्क किससे प्रोड्यूस होते हैं? देयर आर सम इंसेक्ट सिल्कवर्म. सिल्कवर्म आपने पहले सुना है, सिल्क मॉथ भी बोलते हैं इसमें. जब वो उनकी कोकून स्टेज होती है, नाउ यू कैन सी द कोकून स्टेज. ओके, पहले उनकी कैटरपिलर स्टेज होती है. कैटरपिलर अपने चारों ओर कोकून बना लेता है. कोकून इज यू कैन से कॉटन लाइफ स्ट्रक्चर वो बना लेता है. ओके, कॉटन मतलब वो सिल्क थ्रेड के बीच में इंसेक्ट चला जाता है. आफ्टर दैट कोकून स्टेज में हम इस इंसेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं. उसको बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है, गर्म पानी में. उसमें डालने से जो अंदर का इंसेक्ट है वो मर जाता है और जो बाहर का फाइबर है सिल्क फाइबर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. यू कैन सी द सिल्क फाइबर and after that it is used to make any material. Now silkworm कौन से लीव्स पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं? मलबरी ट्रीज पे. तो ये मलबरी ट्रीज के लीव्स को खाते हैं. दैट इज इट्स देयर फूड. ओके, द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ. जो लार्वा होता है सिल्कवर्म का वो अपने चारों ओर एक कोकून फॉर्म कर लेता है. सिल्क इज अ स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर. सिल्क बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं और इट इज़ वेरी शाइनी एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो. ओके, सो सिल्क से क्या क्या बनता है? साड़ीज़ बनाने में काम आता है ये. टाइज, सूट, स्कार्फ्स एट्सेट्रा. ओके, जो सिल्क फाइबर है जनरली वी कैन वियर इट इन द कोल्ड वेदर बिकॉज ये बॉडी को वार्म करता है और ये बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता. इट इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट. Now next fiber that we are reading is wool. Wool is also a natural fiber. It is mainly obtained from sheep. It is warm to wear and underline this and good absorbent of heat. We get wool from the hair of the sheep. The hair of the sheep has certain specific properties making it suitable for textile production. Removing hair from sheep is known as shearing. This process is known as shearing. Now wool is also a natural fiber. ये कहाँ से मिलते हैं हमें? शीप से. ओके, जो वूल होता है जनरली आपको पता है इससे क्या क्या बनता है? हमारे स्वेटर, कैप, ग्लव्स, शॉल एट्सेट्रा. एंड विंटर्स में हम लोग वूलन क्लॉथ्स डालते हैं. इट सेव अस फ्रॉम द हार्श विंटर. Wool is used to make a variety of clothing and is woven or knitted. The wool is removed from the body of the sheep and then packed in bales for transporting to the mills. The wool so obtained is then cleaned and combed by machines. It is now separated and spun into wool fibers. Wool is used for making sweaters, mufflers, shawls,
scarves, gloves, blankets, etc. It traps the air between its fibers and does not allow the heat from our body to escape. Therefore, we feel warm when we wear woolen cloths in winter. So वूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो वूल क्या होता है, हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता, सो ये हमें विंटर्स में वार्म रखता है. ओके, वूल कहाँ से मिलती है? हमें शीप से मिलती है. एंड इट इज़ पैक्ड इन बेल्स में इसको इसके गोले बना के उसको पैक किया जाता है. एंड आफ्टर दैट इसको मिल्स में भेज दिया जाता है. जो वूल है इससे हम इट कैन बी वूवन ऑल्सो और नीटेड ऑल्सो, दोनों टाइप से इससे हम डिफरेंट मटेरियल बनाते हैं. एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स, स्वेटर्स, मफलर, शॉल्स, स्कार्फ्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स जो हमें विंटर्स में काम आते हैं. वी आर मेकिंग दैट फ्रॉम द वूल. Now in this table 3.1 you can see fibers and their origin. Now first one is cotton. Cotton कहाँ से? Origin क्या है इसका? Plant, cotton plant. To make dress, furnish fabrics as cotton wool, etc. Second is jute. It is also plant product, get from jute plant. It is used to make bags, dresses, curtains, etc. Third one is linen. Plant product है, flax plant से. It is used to make garments. Wool, animal product. Hair of the sheep इसके origin है, to make sweaters, coats, dresses, blankets, etc. Silk we get from animals. We get from cocoon of silkworm, and it is used to make the dresses, sarees, etc. So these are its uses. History of clothing. In ancient times, the early men used leaves of trees or skin and fur of animals to cover their bodies. Gradually, they learned to weave grass and twigs to make baskets and mats. They also learned that some plant materials such as cotton, balls or stems of jute plant could be spun into yarns. These yarns could then be used to weave the cloth. Okay. सो एंशियंट टाइम मतलब पहले लोगों को क्या था, सबसे पहले वो लीव्स अपनी स्किन पे बांध के रखते थे जिससे कि, और फर ऑफ एनिमल्स को कवर करते थे अपनी बॉडीज़ को. और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ग्रास और ट्विग्स से बास्केट वगैरह बनानी शुरू कर दी. उससे वो अपने जो लीव्स थे उसको भी ग्रास से वो उसको आपस में नीट करने लगे. एंड आफ्टर सम टाइम they know about the cotton and jute, and they started growing these cotton and jute, and after that they started making cloth from these fibers. Early Indians started growing cotton plants in the regions near the river Ganga. Okay, इसको अंडरलाइन करो. सबसे पहले रिवर गंगा के आसपास जो एरियाज थे वहाँ पे इन्होंने कॉटन प्लांट ग्रो करना शुरू किया. Early Egyptians also grow cotton near the river Nile. Another plant called flax, which too gives a natural fiber, was also grown by ancient Egyptians. People simply draped these fabrics to cover their bodies, as stitching was not known at that time. So जो ये cotton, flax वगैरह जो material हैं, these are grown long time back. Okay, these are drawn by the Indians and the Egyptians, and earlier people used to drape them. Okay, पहले उनको स्टिचिंग का नहीं पता था, so वो simply उसको क्लॉथ्स को ड्रेप किया करते थे, मतलब कवर किया करते थे अपनी बॉडी को. Flax is also known by another name, that is linen. Flax fibers are used for making linen cloth. Linen is fresh and cool to wear. It is durable and very absorbent. It dries fast. Linen has been used for thousands of years. Traces of use of linen have been dated as far as 8000 BC. Even mummies in Egyptian graves have been found wrapped in linen. India, Holland, China and Belgium are major flax producing countries of the world. एक और प्लांट होता है फ्लैक्स, जिससे हमें लिनन फाइबर मिलता है. और जो लिनन है इट इज़ ऑल्सो वेरी ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक रहता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर.
जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये हमारे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर सो मच। सो कौन कौन सी कंट्री में है ये? इंडिया, हॉलैंड, चाइना एंड बेल्जियम, दीज आर द मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्लैक्स प्रोड्यूस होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द नॉलेज डेस्क। On burning, a piece of paper and a cotton give the same smell because both are obtained from plants. A piece of plastic and synthetic fiber also give the same smell because both are made of same chemical components. Right? इसमें मतलब है कि जब हम एक कोई भी पेपर को जलाते हैं या कॉटन को जलाते हैं तो उससे सेम स्मेल प्रोड्यूस होती है बिकॉज दोनों चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, और जब हम कोई प्लास्टिक को या सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो उनकी स्मेल होती है बिकॉज दोनों चीज़ें केमिकल से बनी होती हैं। नाउ बर्निंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई द यार्न। ओके, वी आर डूइंग अ बर्निंग टेस्ट, और हमें पता चल जाएगा बर्न करने से, उसे जलाने से किसी भी क्लॉथ को, ये वो किस टाइप का क्लॉथ है। सबसे पहले कॉटन डज नॉट श्रिंक मेल्ट। अगर आप जलाएंगे कॉटन को तो आप देखोगे वो श्रिंक नहीं हो रहा है, वो उतने ही एरिया में जल जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अडर एज बर्निंग पेपर। अडर मीन्स स्मेल। जब आप कॉटन को जलाते हो तो उसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे पेपर को बर्न करके होती है। नेक्स्ट इज सिल्क श्रिंक्स। जब आप सिल्क को गर्म करोगे, जलाओगे तो वो आपस में श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। एज चार्ड मीट। चार्ड मीट जब आप मीट को जलाते हो वैसी उसमें स्मेल आएगी। वूल। वूल को जब आप बर्न करोगे वो श्रिंक्स एंड मेल्ट्स, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और श्रिंक भी हो जाएगा। एज बर्निंग हेयर, उसकी स्मेल ऐसी आएगी जैसे हेयर बर्न हो रहा है। सिंथेटिक क्लॉथ जैसे नायलॉन, श्रिंक्स एंड मेल्ट्स ये भी, एंड इसकी स्मेल आएगी जैसे प्लास्टिक को बर्न करके आती है। नाउ चेक पॉइंट 3, दिस यू विल डू, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ बट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, प्रैक्टिस टाइम आप करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस ऑल these questions, and here you will do the crossword of this chapter. So we will discuss this in our next class. Thank you.